Hello everyone, welcome to the today's session of the editorial. So let's begin with our class. Okay, as you guys can see that I have translated the entire article in Hindi also. So if you are having any problem in understanding it in English, you can read it in Hindi and understand it very well. Okay, so let's begin with our class. So the title of the today's editorial is A Planet in Crisis. Okay, a planet here refers to our earth. Our earth is in crisis मतलब here it is problem. ठीक है, our planet earth is in problem on tangible outcomes from biological diversity conventions. Tangible outcomes, tangible is visible, outcomes is results. ठीक है, so the visible results of, ठीक है, सो किस चीज़ के विजिबल रिजल्ट्स, जो कि इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन, दिस इज़ द नेम ऑफ अ मीटिंग. ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन. सो द here in this editorial we are talking about the outcomes that are tangible. ठीक है, that are tangible from this convention. ठीक है, संकट में धरती जैविक विविधता सम्मेलन, दिस इज़ द नेम. ठीक है, जैविक विविधता सम्मेलन के ठोस नतीजों के संदर्भ में. ठीक है, का संदर्भ इज अ ब्रीफ summary of something. So, okay, here it is a brief summary of biological diversity convention. Okay, tangible outcomes from biological diversity convention are a long time away. जैविक विविधता सम्मेलन के ठोस नतीजे सामने आने में अभी काफ़ी समय बाकी है. ठीक है, that means the meeting which has been convened now, its outcomes will be visible after a very long time. ठीक है, that is what author here wants to convey us. ठीक है, let's come to the vocabulary section. Retune, the meaning of the word retune is a group of people who travel with an important person to provide help and support. Okay, like you must have seen with the group of people that goes with MPs, MLAs. ठीक है, the important religious person, so that is called as retuning. ठीक है, next is contentious, likely to cause an argument. Okay, if this thing is contentious, that means you are not agree to it and you want an argument on it. ठीक है, that is the meaning of contentious. Huddle, meaning of huddle is a small group of people or things that are close together. Okay, that means like this, very close, that is a group of people or things which are close together, this is called as huddle. ठीक है, grandiloquent, meaning of this word is using long, complicated or formal words in speech or writing in order to impress the people, attract attention or sound important. Okay, that means giving long speeches. ठीक है, giving very attractive speeches to impress the people is called as grandiloquent. Okay, inexorably, meaning of this word is in a way that is impossible to stop or prevent. If a thing is inexorable, that means it is impossible to stop or prevent. ठीक है, COVID, at a point of time COVID was inexorable for us. ठीक है, that means we were not able to stop it at some point of time. ठीक है, that can be the example. The next is capitalism. Capitalism is the economic system in which businesses are owned and run by profit by individuals and not by the state. Okay, you must have known in economics, like there are three types of economical systems. ठीक है, the first one is socialistic, second is capitalistic, third is mixed. Mixed is the mixture of the socialist and capitalistic. Socialist is the one where only the government takes all the decisions, and ठीक है, capitalism is the one where this profit, where the businesses are run for the motive of profit. ठीक है, that means it is profit oriented. Socialistic is, that means socialistic economic system is welfare oriented. ठीक है, the thing for the people. And mixed is the mixture of both. ठीक है, but
ठीक है. Here how the capitalism is used we will get to know in our editorial. ठीक है. Reckons, next word is reckons. The meaning of this word is to think, to have an opinion about something. If you have an opinion about something, that means you reckon, and that means you reckon something. ठीक है. Bring home, the meaning of this is to make someone understand something much more clear than they did before, especially something unpleasant. ठीक है. That means you are explaining something bad news or unpleasant one more clearly to someone. ठीक है. Next is anachronistic. Anachronistic is old fashioned. ठीक है. Obsolete, that is the meaning of anachronistic. Tack, the meaning of this word is a way of dealing with a particular situation. ठीक है. That means how you deal with a particular situation using your skills, your intelligence, that is called as a tack. ठीक है. Next is adage. The meaning of this word is it is a well-known phrase expressing something that is always true about the people or the world. ठीक है. That means it is like कहावत as we say in Hindi. ठीक है. Adage is the कहावत. ठीक है. That means which applies to everybody in this world. ठीक है. Okay. Let's come to our paragraph now. ठीक है. A month after 27th conference of the ठीक है. A month after the 27th conference of, so this is the name of this meeting, parties to the UN Framework Convention on Climate Change. ठीक है. That is COP27. ठीक है. So this is the name of the party. After a month of this meeting, which was held in Egypt, diplomatic retinue, we have learned the meaning of this word now. Retinue means a group of people who will be always there with some important personalities. ठीक है. So the diplomatic retinue, now those people went into a contentious, that means the argumentative huddle is a group, ठीक है, which are very close together. So these diplomatic people in an argumentative this thing, they went into an argument to save the planet in Montreal, Canada. So, okay, so this meeting was held in Montreal, Canada this time, and as the Convention on Biological Diversity, so CBD. This is also the name of this meeting. So where this diplomatic retinue, where this group of people went to argue about to argue on the topic of this thing. This is to save the planet. Where they went to the Convention on Biological Diversity, that is CBD. ठीक है. मिस्र में हुए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के 27वें सम्मेलन COP27 के एक महीने बाद इस धरती को बचाने के लिए राजनयिक अमले का विवादास्पद जमघट एक बार फिर से जैविक विविधता सम्मेलन CBD के रूप में इस बार कनाडा में मॉन्ट्रियल में लेगा. ठीक है. While both, see, I have translated the entire article in Hindi also, so if you are having any problem in understanding the things in English, you can learn it from Hindi. ठीक है. Okay, hope this much is clear. While both these conferences can trace their origins to Rio Summit of 1992, ठीक है, that means these meetings, okay, that means these were first held during the Rio Summit, which was held in 1992. The CBD does not get anywhere near the media attention COP commands. That means, ठीक है, जो CBD था उसको इतनी मीडिया अटेंशन नहीं मिलती है जितना COP को मिलती है. COP कमांड्स मतलब अपना किसी पे होल्ड रखना, किसी पे कमांड रखना, मतलब किसी चीज़ पे होल्ड रखना, मतलब जितना COP मीडिया पे होल्ड रखता है वो उतना CBD नहीं रख पाता है. ठीक है. इन दोनों सम्मेलनों की जोड़ जहां 1992 के रियो शिखर सम्मेलन में तलाशी जा सकती है, वही CBD की मीडिया की ओर से
कहीं से भी कॉप जैसी तवज्जो नहीं मिली। ठीक है, दैट मीन्स CBD को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। ठीक है, देर आर नो वर्ल्ड लीडर्स एंड हेड्स ऑफ द स्टेट मेकिंग ग्रैंड eloquent commitments because of CBD largely continues to be framed as an environmentalist concern much like what COP used to be। ठीक है मतलब ऐसा क्यों हुआ, CBD को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं मिली? क्योंकि तो वहाँ पे ऐसे कोई वर्ल्ड लीडर्स नहीं थे जिन्होंने ग्रैंड eloquent, मैंने इस वर्ड का मीनिंग आपको बताया था, मतलब बहुत ही बड़े बड़े स्पीचेस देना। ठीक है, बहुत ही अट्रैक्टिव स्पीचेस देना। तो वर्ल्ड लीडर्स ने, कोई भी वर्ल्ड लीडर इस मीटिंग में नहीं आया था। क्यों? क्योंकि तो वो इसे सिर्फ एक एनवायरमेंटलिस्ट कंसर्न समझते हैं। ये एक एनवायरमेंट से रिलेटेड एक कंसर्न है, उसे बहुत ही बड़ा मुद्दा नहीं समझते हैं इस मीटिंग को। मच लाइकली COP यूज्ड टू बी, COP को भी पहले लोग ऐसे ही समझते थे, पर अब ऐसा नहीं समझते हैं। कब तक ऐसा समझते थे? जब तक COP को फोर्सेस ऑफ कैपिटलिज्म मैनेज्ड टू री इमेजिन द आइडिया ऑफ प्लानट बीइंग इनएग्जॉरेबल। ठीक है आई एम सॉरी, मेरा आज थोड़ा गले का इशू है। मैंने इनएग्जॉरेबल का बताया था आपको मीनिंग, अनेबल टू स्टॉप। ठीक है, जिसको आप स्टॉप नहीं कर सकते हो। तो कब तक COP को ऐसा माना जा रहा था? जब तक इन कैपिटलिज्म फोर्सेस ने, मतलब जब तक बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस ने उसमें अपनी इंटरेस्ट नहीं दिखाई, उसमें अपने बातों को कहना शुरू नहीं किया। ठीक है, तो थोड़े समय तक COP और CBD सेम ही थे, पर तो उसके बाद COP में बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, कैपिटलिज्म, फोर्सेस ऑफ कैपिटलिज्म, मतलब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, मैंने आपको इसका वर्ड आपका वोकैबुलरी में बताया था। ठीक है, इकोनॉमीज़ का, पर यहाँ पे कैसे यूज़ हुआ है कैपिटलिज्म? बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के रूप में। ठीक है, तो जब तक उन्होंने इसे री इमेजिन किया, किस चीज़ को री इमेजिन किया? द आइडिया ऑफ, उनको एक आइडिया आया कि हम एक ऐसे प्लानट की उन्हें एक आइडिया आई जिसे, जो कि इनएग्जॉरेबली, ठीक है, जिसको हम इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, जिससे हम अब रोक नहीं सकते हैं। किस चीज़ को रोक नहीं सकते? स्लो कुकड इन ग्रीन हाउस गैसेस। तो धीरे धीरे जो हमारी धरती पक रही है इस ग्रीन हाउस गैसेस में, जैसे जैसे वो अभी पक रही है, ठीक है, मेल्ट डाउन होते जा रही है, इससे एक री इमेजिन किया इन कैपिटलिज्म के फोर्सेस ने। ठीक है, तब तक ये सेम ही थी, पर इन्होंने जब इसे री इमेजिन किया, किस चीज़ से री इमेजिन किया? दैट टू वन दैट, ठीक है, ये स्लो कुक्ड प्लानट टू, मतलब जो ये पकती धरती है, हम इसे कैसे बदल सकते हैं? दैट इट में बी सेव्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस आपके वो होते हैं जिसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे अब क्या विंड हो गया, सोलार एनर्जी हो गया। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और जिससे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होता है। ठीक है, तो इन फोर्सेस ऑफ कैपिटलिज्म ने सोचा कि हाँ, हम जो हमारी ये धरती पक रही है ग्रीन हाउस गैसेस में, इसे हम ऐसे भी बचाया जा सकता है। एंड द वेरी लेस्ट मेक सम एंटरप्रेन्योर रिच। और ये लोग किस चीज़ में नाकाम रहे? उन्होंने सोचा कि हाँ, अब हम ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का पता लगाएंगे, फिर हम उन एनर्जीज़ को बेचेंगे और उससे पैसा कमाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं है अब तक तो। ठीक है, ठीक है, इस सम्मेलन में दुनिया के किसी भी नेता और राष्ट्र प्रमुख ने बड़े बड़े वादे नहीं किए, क्योंकि CBD को काफ़ी हद तक एक पर्यावरणवादी चिंता के तौर पर देखा जाना जारी है। ठीक है, जस्ट एक पर्यावरण की चिंता समझते हैं, इस एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं समझते हैं। ठीक वैसे ही जिस तरह कॉप को उस वक्त तक देखा जा रहा जब तक कि पूंजीवाद की ताकतों ने, पूंजीवाद इज कैपिटलिज्म, ठीक है, पूंजीवाद की ताकतों ने ग्रीन हाउस गैसों की आंच में धीमी गति से पकती इस धरती को नवीकरण ऊर्जा स्रोतों के ज़रिए अभी भी बचाया जा सकने और इससे कम कुछ उद्यमियों को समृद्ध बनाए जा सकने के विचार को फिर से परिभाषित करने में कामयाबी नहीं
पा ली, ठीक है। कामयाबी नहीं पा ली मतलब, सॉरी आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज इंटरप्रेटेड हियर रॉन्ग। दैट मीन्स इन्होंने इस चीज़ में कामयाबी पा ली है, ठीक है। किस चीज़ में कामयाबी पा ली है इन्होंने सोचा कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को फाइंड करेंगे और उसे बेचेंगे और पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो कब तक ऐसा नहीं हुआ, कब तक COP27 को इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही थी, इन सभी चीज़ों से पहले। पर जब कैपिटलिज्म के फोर्सेस आ गए, उन्होंने री इमेजिन किया कि हम रिन्यूएबल एनर्जी बनाएंगे, और जब तक उन्होंने पा नहीं लिया, जब तक उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स को रिच नहीं बना दिया, ठीक है, जब एंटरप्रेन्योर्स भी फिर रिच हो गए इस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को बेच के, तब तक, उससे पहले तक ही कॉप को इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता। पर इन सब चीज़ों के बाद अब कॉप को इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है। देखिए अब ये लास्ट लाइन आप हिंदी से समझ के अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। Unlike cyclones and melting glaciers that have become visual aids, ठीक है। विजुअल एड्स का आपका मतलब होता है, देखो हम अपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा ना, जैसे कि आपको ग्राफ्स होते हैं, पाई चार्ट्स होते हैं, लाइन डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। आपको वो जब डेटा जो होता है, इन शॉर्ट जो डेटा जो होता है, ठीक है, जिसके आप बेटर अच्छे से समझ सकते हैं, उसे कहते हैं हम विजुअल एड्स, ठीक है। तो ये जो साइक्लोन्स और मेल्टिंग ग्लेशियर्स है, ये हमारे लिए डेटा बन चुके हैं, जिसे हम अच्छे से समझ सकते हैं। किस चीज़ का ये डेटा है? टू ब्रिंग होम द क्लाइमेट क्राइसिस रॉट by invisible gases, biodiversity loss continues to be largely invisible despite its victims being extremely visible, ठीक है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कि हमारी इन इनविजिबल गैसेस में हमारी जो ये धरती पक रही है, ठीक है, क्लाइमेट क्राइसिस के वजह से, व्रॉट बाय मतलब उस चीज़ के द्वारा लाया गया हो, क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से जो कि हम इनविजिबल गैसेस में हमारी धरती पक रही है, और जो ये साइक्लोन्स और ग्लेशियर्स हमें दिख रहे हैं, इसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है वो हमें नहीं दिख रहा है, इट्स लार्जली इनविजिबल डिस्पाइट इट विक्टिम्स बीइंग एक्सट्रीमली विजिबल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं दिख रही हैं, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हमें नहीं दिख रहा है, पर हमें क्या दिख रहा है, उसके जो विक्टिम्स हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस के विक्टिम्स, मतलब जो भी स्पीसीज़ हैं, ठीक है, प्लांट्स के स्पीसीज़ हो गए, एनिमल्स के स्पीसीज़ हो गए, वो एक्सटेंट हो रहे हैं, मतलब ख़त्म होने के कगार पे हैं, तो वो हमें दिख रहा है। पर ये जो बायोडाइवर्सिटी के ख़त्म हो रहा है, बस हमें इतना ही पता है, पर इससे जो जो लॉस हो रहा है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को लॉस हो रहा है, वो हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। साइक्लोन्स आ रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, बाढ़ आ रही है, ये सब हमें दिख रहा है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का इससे जो लॉस हो रहा है और इसके जो विक्टिम्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जो एक्सटेंट होते जा रहा है, वो हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट ऑथर वांट्स टू से, ठीक है। ठीक है बेटा, आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया है, आई होप, ठीक है। फिर भी मैं आपको हिंदी में ज़रूर समझाऊंगा, ठीक है। बेस्ड ऑन द करंट ट्रेंड्स, अगर हाल ही के ही डेटा को, ट्रेंड्स को देखा जाए तो यूएन ऐसा कहता है और समझता है कि उन्होंने एक एस्टिमेट किया है कि 34,000 जो प्लांट्स हैं और 5,200 एनिमल्स के जो स्पीसीज़ हैं, ठीक है, मतलब 34,000 स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स और 5,200 स्पीसीज़ ऑफ एनिमल्स, इंक्लूडिंग 1 in 8 of the world's bird species फेस एक्सटेंशन। तो मतलब ये सभी जो हैं ये एक्सटेंशन पे हैं, ख़त्म होने के कगार पे हैं, मतलब 34,000 प्रजातियाँ प्लांट्स की और 5,200 प्रजातियाँ एनिमल्स की, ठीक है, और हर 8 में से एक, ठीक है, 8 in 1 मतलब हर 8 में से एक पक्षी ख़त्म होने के कगार पे है, एक पक्षी की स्पीस ख़त्म होने के कगार पे है, ऐसा यूएन कहता है, ठीक है। 30% ऑफ ब्रीड्स ऑफ मेन फार्म एनिमल, मतलब जो मेन फार्म एनिमल्स हो गए, ठीक है, जो फार्मिंग के लिए जो फार्म्स पे एनिमल्स यूज़ होते हैं, उनमें से 30% जो उनकी स्पीसीज़ है, उनकी प्रजाति है, वो करंटली एट हाई रिस्क पे है, ठीक है। यहाँ पे पर्पल इसलिए हुआ है क्योंकि तो आपको ग्रामर दिखाना है,
ऑन हाई रिस्क नहीं आता है, एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन आता है। ठीक है, वो ग्रामर आपको ऑब्जर्व करवा दी। ठीक है, फॉरेस्ट्स आर होम टू, होम के बाद टू ही आता है। ठीक है, इंडिया इज़ होम टू मैनी रिलीजन्स। ठीक है, होम के बाद टू आता है, होम ऑफ नहीं आता है, ये भी ग्रामर आपको दिखाना है। ठीक है, फॉरेस्ट्स आर होम टू, फॉरेस्ट किसके घर हैं? मच ऑफ द नोन टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी, टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे एनिमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो लैंड पे जो बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हो गए, तो उनके लिए फॉरेस्ट ही 30% ऐसे फॉरेस्ट ही ज़्यादातर इन सभी स्पीसीज़ के लिए घर है। तो अबाउट ऑल्दो हमें पता है कि ये सभी फॉरेस्ट इनका घर है, पर 45% ऑफ द अर्थ्स ओरिजिनल फॉरेस्ट आर गॉन। ठीक है, मतलब 45% ऑफ जो अभी अर्थ का जो फॉरेस्ट एरिया है वो ख़त्म हो चुका है। कई सारे रीजंस हो सकते हैं, फॉरेस्ट फायर्स हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन मतलब जो हमने खुद से झाड़ काटे हैं वो हो सकता है। ठीक है, तो इन सब से क्या हो गया है, 45% फॉरेस्ट एरिया ख़त्म हो चुका है, क्लियर मोस्टली ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी। तो पिछले सेंचुरी मतलब पिछले 100 सालों में ये देखा गया है कि धीरे धीरे करते करते 45% फॉरेस्ट एरिया अर्थ पे ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब हम इसे हिंदी में पढ़ते हैं। अदृश्य गैसों द्वारा पैदा किए गए जलवायु संकट को समझने में मददगार बने चक्रवातों और पिघलते ग्लेशियरों के नज़ारों के उलट जैव विविधता के संकट के पीड़ितों को खुली आँखों के बिल्कुल सामने होने के बावजूद इससे होने वाले नुकसान काफ़ी हद तक अनदेखा बना हुआ है। दैट मीन्स जो लॉस है वो हमें नहीं दिख रहा है। वर्तमान रुझानों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि दुनिया की 8 पक्षी प्रजातियों में से एक प्रजाति विलुप्त होने के कगार पे है और 34,000 पौधों की प्रजाति और 5,200 पशु प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पे हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा उनका हिंदी का ट्रांसलेशन सही से नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसे खुद से ही सही से पढ़ दिया। ठीक है, तो हर 8 में से एक प्रजाति विलुप्त होने के कगार पे है बर्ड्स की, प्लांट्स की 34,000 स्पीसीज विलुप्त होने के कगार पे है और एनिमल्स यानी कि प्राणियों की प्रजाति 5,200 प्रजातियां ख़त्म होने के कगार पे है। ठीक है, वर्तमान में कृषि कार्यों में उपयोगी मुख्य पशु प्रजातियों की लगभग 30% नस्लों के विलुप्त होने का जोखिम है। वन अधिकांश ज्ञात स्थलीय जैव विविधता के आश्रय हैं, लेकिन पृथ्वी के मूल वनों का लगभग 45% हिस्सा समाप्त हो गया है। इनमें से ज़्यादातर को पिछली सदी के दौरान साफ़ किया गया है। साफ़ किया गया मतलब यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, ख़त्म हो गए हैं इन शॉर्ट। ठीक है बेटा, आपको यहाँ तक का आर्टिकल आपको सही से समझ में आया है ना? मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर इसलिए किया है, आपको यहाँ पे जॉइंट करना है। ठीक है, आपको ऐसा पढ़ना है, इंडिया सीम्स एनार्कनिस्टिक। ठीक है, यहाँ पे फिर फुल स्टॉप आ गया है। फिर आपको यहाँ से कनेक्ट करना है कि वाइल इंडिया हैज़ ऑर्ग्यूड। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। अगर आप ऐसे कॉन्टीन्यूसली पढ़ते जाओगे, वाइल इंडिया एडॉप्टिंग अ नेगोशिएटिंग टैक्ट, तो आपको ऐसे चांसेस है कि कम समझ में आए। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं आर्टिकल को। Yet, because of much of this extension is not finally accounted for. Accounted के बाद for आता है, ग्रामर आपको देखना है, accounted to नहीं होता है, accounted for होता है। ठीक है, अगर आप किसी को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं तो accounted for का ही इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये जो एक्सटेंशन है, हम इस एक्सटेंशन का किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सक रहे हैं, क्योंकि एज द राइज इन द पर कैपिटा कार्बन एमिशन और टेम्परेचर स्विंग्स। ठीक है, मतलब जैसे हमने
जैसे हमने मेजर कर लिया है कि कार्बन एमिशंस कौन सी कंट्री कितना करती है, टेम्परेचर स्विंग्स को हमने मेजर कर लिया कि कैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है हर साल, तो हम उससे उस चीज़ को मेज़र कर पा रहे हैं और उससे ज़िम्मेदारी भी ठहरा सक रहे हैं कि किन देशों के वजह से ऐसा हो रहा है। पर ये जो एक्सटेंशन हो रहा है ये किन देशों की वजह से हो रहा है हम इसे अकाउंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। नॉट फाइनली, अच्छे तरीके से हम इसे अकाउंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इट फेल्स टू इवोक, इट किसके लिए लगा है, ये एक्सटेंशन की वजह से, एक्सटेंशन के लिए। तो ये एक्सटेंशन जो है ना ये फेल हो गया है इवोक करने में, मतलब इस चीज़ को समझाने में, इस चीज़ को दिखाने में कि द अर्जेंसी इट डिज़र्व्स। तो जितना हमें इस एक्सटेंशन को अर्जेंसी डिज़र्व्स, मतलब जितना जल्द से जल्द हमें इस पर काम करना है, ठीक है, इसको जितनी इम्पोर्टेंस देनी है, ये एक्सटेंशन जो ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, बर्ड्स की स्पीसीज़, एनिमल्स की स्पीसीज़, इनफैक्ट ये ह्यूमंस को भी धीरे धीरे ऐसे ही ख़त्म करते जाएगा क्लाइमेट चेंज, तब क्या करोगे। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये जो एक्सटेंशन है ना ये अपने तरफ इतनी अपने तरफ इतना आकर्षक नहीं कर पा रहा है, फेल हो गया है, ठीक है। इन दिस लाइट इंडिया स्टांस सीम्स एनाक्रोनिस्टिक, एनाक्रोनिस्टिक मतलब ओल्ड फैशन्ड है इस संदर्भ में इंडिया का पोजीशन, मतलब इंडिया का व्यू। व्हेन इट सीज इटसेल्फ एज द चैम्पियन ऑफ कंजर्वेशन एंड लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर, ठीक है। इंडिया को तो ऐसा इंडिया अपने आप कैसे दिखाता है कि वो हम अब नेचर के साथ रहते हैं, हम नेचर को कंजर्व करते हैं, ठीक है। इंडिया का तो ये जो स्टांस है ना ये एनार्कनिस्टिक हो गया है। कौन सा वो पोजीशन है एनार्कनिस्टिक वो हम देखेंगे, पर इंडिया का स्टांस एनाक्रोनिस्टिक हो गया है, जबकि वो खुद को ऐसा दिखाता है कि हम अपने नेचर के साथ मिल के रहते हैं, ठीक है। कौन सा स्टांस अब ओल्ड फैशन हो गया है देखते हैं। दैट इज़ नॉट वांटिंग हार्ड टारगेट्स ऑन प्रपोजल्स, ठीक है, मतलब अपने आप के लिए हार्ड टारगेट्स सेट नहीं करना चाहता है इंडिया, मतलब जो मुश्किल टास्क्स हैं वो सेट नहीं करना चाहता है। कौन से हैं वो मुश्किल टास्क, सच एज रेड्यूसिंग द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम कर दो, ठीक है, वहाँ पे ऐसा कहा गया था, पर इंडिया ने उस चीज़ से इनकार कर दिया कि नहीं नहीं ये हमसे नहीं हो पाएगा। गिवन दैट देयर इफ़ेक्ट्स ऑन इम्पैक्टिंग बायोडाइवर्सिटी आर डॉक्यूमेंटेड, ठीक है, उसका जो इम्पैक्ट है पेस्टिसाइड यूज़ का वो भी बतलाया गया है कि इसका बहुत ही ख़राब इम्पैक्ट है, आप इसे रोक दो, पर इंडिया मना कर दिया। एंड कंजर्विंग 30% ऑफ लैंड एंड सी, अगर आप पेस्टिसाइड्स को बंद कर दोगे तो बायोडाइवर्सिटी का 30% आप उससे डिस्ट्रॉय होने से बचाओगे, पर फिर भी इंडिया ने उस टारगेट को मना कर दिया मानने से, ठीक है। वाइल इंडिया हैज़ आर्ग्यूड का मतलब होता है इंडिया ने इस बात को कहा, बहुत ज़ोर से देकर कहा कि डिफरेंट नेशंस हैव डिफरिंग लेवल्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है, मतलब जो अलग अलग देश हैं उनकी अलग अलग हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कौन सा देश कितना रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए। अडॉप्टिंग अ नेगोशिएटिंग टैक्ट, मतलब टैक्ट का मतलब होता है स्किल्स, आप कैसे किस बात को रख रहे हो, किस इंटेलिजेंस के साथ रख रहे हो। तो इंडिया ने इस बात को अडॉप्ट किया, इस बात को माना, एक स्किलफुली बात कहते हुए उन्होंने कहा क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस में, स्किलफुली बात करते हुए, इंटेलिजेंस के साथ बात करते हुए उन्होंने ऐसा आर्ग्यू किया, कहा कि भाई अलग अलग देशों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, मतलब जो रिच कंट्रीज़ है, डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज उन्होंने बहुत हद तक पोल्यूशन फैलाया है, हम तो डेवलपिंग हैं, हमने कम फैलाया है, तो हम कम जिम्मेदार हैं, ऐसा स्किलफुल इंटेलिजेंस के साथ इंडिया ने कहा, ठीक है। विच किसके लिए, विच रिक्वायर्स नेशंस, ठीक है, तो ये ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए है, तो विच रिक्वायर्स रिचर नेशंस टू बी मोर जेनरस फंडर्स मतलब जो पैसे देते हैं, फंड्स देते हैं। तो इस कंजर्वेशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, जो रिच नेशंस है वो लोग बहुत खुले, जेनरस का मतलब है खुले मन से बहुत ही ज़्यादा पैसा दें, ठीक है, फॉर किस चीज़ के लिए, ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट्स, ग्लोबल मतलब पूरे विश्व के लिए जो कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रहे हैं उसके लिए वो पैसे दें, ठीक है। इट इज़ वेल नोन दैट सच डिमांड्स आर डेड एंड अनलेस कंट्रीज एग्री टू डेफिनाइट टारगेट्स, ठीक है,
तो ये सब जानते हैं हम लोग कि ऐसी जो ये बातें हैं, ऐसी जो डिमांड्स है कि हाँ आप कम रिस्पॉन्सिबल हो, हम लोग ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, ये सब यूज़लेस हैं, डेड एंड हैं, मतलब एक चीज़ पे रुका देने वाली हैं। तो ऐसे तो सभी कहेंगे ना कि नहीं नहीं आप ज़्यादा ज़िम्मेदार हो, नहीं आप ज़्यादा ज़िम्मेदार हो, तो हम एक जगह पे आके रुक जाएंगे, कोई कुछ करेगा ही नहीं। और कंट्रीज़ तो इसका एक ही सल्यूशन है कि जब तक कंट्रीज़ अपने आप के लिए डेफिनेट टारगेट सेट नहीं कर देते कि हाँ हम ये चीज़ इतनी साल तक करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, तो जब तक वो टारगेट सेट नहीं कर देते हैं, कमिट नहीं करते हैं, तब तक तो ये चीज़ें यूजलेस ही रहेंगी। ठीक है, देखिए आज का ये एडिटोरियल ना आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप हमारी जो ये प्रेजेंट जनरेशन है, हमारी आने वाले जनरेशन के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, जब वो ये हमारी आने वाली जनरेशन इस आर्टिकल को पढ़ेगी तब उन्हें पता चलेगा कि इतना सीरियस मैटर था, और हमारी जो पिछली जनरेशन है उनको भी पता चलेगा कि उनके टाइम पे किस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट प्रदूषित होता रहा। तो ये सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे सबके साथ आप शेयर ज़रूर से करिएगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट से पैराग्राफ पर। ठीक है, तो मैंने इस पैराग्राफ को हिंदी में भी ट्रांसलेट किया, अगर आपको इधर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, वॉट कैन नॉट बी मेजर्ड एज द अडेज गोज कैन नॉट बी अंडरस्टूड और एड्रेस। तो ऐसी एडेज का मतलब होता है कहावत, तो ऐसी कहावत है कि जिससे हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो कंट्रीज़ ने क्या एक्सक्यूज़ दिया किस चीज़ के लिए, जो हार्ड टारगेट्स हैं। ठीक है, अपने आप को कमिट करने के लिए कि हाँ हम इतने पैसे देंगे। डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस ने ऐसा एक एक्सक्यूज़ दिया, एक ऐसा रीज़न दिया कि जैसे कि कहावत है ना कि जिस चीज़ को हम मेजर ही नहीं कर सकते हैं, जिस चीज़ को तोला नहीं जा सकता, हम उस चीज़ को भाई समझेंगे कैसे और उसे एड्रेस कैसे करेंगे। ठीक है, मतलब जिस समस्या को हम समझ ही नहीं सक रहे हैं, ठीक है, जिस समस्या को हम मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उससे समझेंगे क्या और हम उसे कैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि कहा जाता है जिस समस्या का निर्धारण इज़ मेजर करना, निर्धारण नहीं हो उससे समझना संभव नहीं होता या फिर उसका हल नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, एलिज़ाबेथ मरूमा मोरेमा, ठीक है, ये उनका नाम है, किनका नाम, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं ये सीबीडी की। तो इन्होंने कहा है कि डिस्क्राइब किया है, कहा कि द नेगोशिएशंस एज वन दैट शुड रिजल्ट इन, तो सीबीडी का जो भी नेगोशिएशंस होंगी इस मीटिंग में, उन्होंने कहा था कि ये इस तरीके के होने चाहिए कि वो पेरिस मूवमेंट फॉर नेचर हो। पेरिस मूवमेंट फॉर नेचर मतलब जिस तरीके से पेरिस एग्रीमेंट के दौरान सभी कंट्रीज़ ने एक साथ आके साइन किया था, वादे किए थे, कमिटमेंट्स किए थे, उस तरीके से हों। वाइल से हमें यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया, पर ऐसा तो हुआ ही नहीं। दिस वॉज नॉट क्वाइट वॉट हैपेंड। ठीक है, countries have agreed on preparing concrete roadmaps by 2024 and the richer ones committing $30 billion annum by 2030। तो इन्होंने तो जो सेक्रेटरी है इन्होंने तो कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट की तरफ आपको आके बड़े बड़े सभी एग्रीमेंट्स पे साइन करना होगा। ठीक है, और एक साथ यूनानिमसली आपको आके इस सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना होगा और सॉल्व करना होगा, पर ऐसा तो हुआ ही नहीं। कंट्रीज़ ने क्या किया, उन्होंने सिर्फ अग्री किया कि हाँ हम रोड मैप बनाएंगे 2024 तक, और जो रिचर कंट्रीज़ हैं उन्होंने कमिट किया। देखो कमिटिंग के बाद टू ज़रूर आता है, पर यहाँ पे एन आया है। ऐसे क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप किसी चीज़ से कुछ वादा करते हो किसी लोग से, तो आप कमिटिंग के बाद टू लगाते हो, कमिटिंग टू समवन होता है अगर आपका वहाँ पे नाम दिया है। ठीक है, पर यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ ने तो जनरली ही ऐसा कह दिया। ठीक है, जबकि सेक्रेटरी ने कहा था कि आपको साइन करना होगा एग्रीमेंट पे कि हाँ हम इन देशों को इतना देंगे, इन देशों को पैसे इतना देंगे। नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज़ रिचर नेशंस ने ऐसा कुछ नहीं किया, बस उन्होंने जनरली ऐसा कह दिया कि हाँ हम पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे, $30 बिलियन एक साल में देंगे। किससे देंगे, कितना देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इसलिए कमिटिंग के बाद यहाँ पे एन आया। ठीक है, ये भी एक ग्रामर का आपका
मेरे को आपको ऑब्ज़र्व करना था, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा कह दिया, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है कि सीइंग टैंजिबल आउटकम्स इज़ अ लॉन्ग टाइम अवे। तो इस चीज़ से जो CBD के जो रिजल्ट्स हैं ना, ये पूरे होना, इससे कुछ इफ़ेक्ट पड़ना, इसका इम्पैक्ट होना हमारे सोसाइटी पे, ये बहुत ही दूर तक जाएगा। बिकॉज कंट्रीज़ कुछ भी कमिट करने के लिए रेडी ही नहीं है, ठीक है। तो होप आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वोकैबुलरी टेस्ट पे। आपको इन सभी वर्ड्स का मीनिंग आपको बताना होगा और आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, ठीक है। कंटेंशियस का मतलब होता है जिस पे आप आर्गूमेंट करें। ग्रैंड आई लिक्वेंट का मतलब होता है बहुत ही बड़े स्पीचेस और अट्रैक्टिव स्पीचेस देना। इनएक्सोरेबल, इम्पॉसिबल टू कंट्रोल। टैक्ट, स्किलफुल और इंटेलिजेंस वे में बात करना। अडेज का मतलब होता है कहावत, ठीक है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि अगर आप बैंकिंग सेक्शन के मेंस में आप पहुंच जाते हो तो आपको वहाँ पे ऐसे राइटिंग भी करना होता है, ठीक है। आपको एक ऐसे भी लिखना होता है। तो मैं आपको हर अपने इस सेशन में आपको एक ऐसे का टॉपिक देता हूँ जिससे कि आपको लिखना होता है, जैसे कि आपकी प्रैक्टिस होती है। तो इस बार का टॉपिक है राइट एन एसे ऑन इंडिया स्टांस ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इंडिया का क्या व्यू है क्लाइमेट चेंज पे, वो क्या क्या कर रहा है, उस पर आपको ऐसे लिखना है 200 वर्ड्स में, ठीक है। तो दिस आर्टिकल विल हेल्प यू टू राइट एन ऐसे ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। यू कैन टेक द पॉइंट्स फ्रॉम दिस आर्टिकल, ठीक है। सो द टोन ऑफ, अब आ जाते हैं हम टोन पे, ठीक है। आपको पैसेज जब दिया जाता है, RC दी जाती है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, तो वहाँ पे आपको कभी कभार टोन भी पूछ लिया जाता है कि इस पैसेज का टोन क्या है। तो आज की इस एडिटोरियल का टोन था एनालिटिकल, ठीक है। एनालिटिकल इज़ द टोन। पूरे इस पैसेज में एनालाइज किया था ऑथर ने कि भाई CBD को क्यों इम्पोर्टेंस नहीं थी, कब तक इम्पोर्टेंस नहीं थी, कॉप को कब तक इम्पोर्टेंस नहीं थी, उसे कब इम्पोर्टेंस मिली, कैसे मिली, ठीक है। फिर कॉप के रिजल्ट्स क्या है, CBD के रिजल्ट्स क्या हुए, ठीक है। तो एनालिटिकल इज़ द टोन, ठीक है। तो आपको ये होलसम सेशन कैसा लगा? होलसम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तो हमने यहाँ पे ग्रामर भी ऑब्जर्व किया, ठीक है। हमने कैसे रीड करते हैं वो भी पढ़ा और अपना वोकैबुलरी भी किया, ऐसे भी किया। तो इसलिए आपको एक ये होलसम सेशन मैं कह सकता हूँ, ठीक है। हम रोज़ ही इसी तरीके से डिस्कस करते हैं अपने एडिटोरियल के सेशन को। तो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा आपको ये टॉपिक सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे आपके फ्रेंड्स SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग एग्ज़ाम्स हो, इंश्योरेंस हो, RBI, NABARD हो, इनफैक्ट UPSC के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा ये सेशन, ठीक है। तो ज़रूर उनके साथ भी शेयर करेगा, ठीक है। नाउ दिस वाज इट फॉर द टुडेज सेशन। नाउ आई विल बी वाइंडिंग अप, ठीक है। So until we meet next time, bye bye everyone and take care.